for providing me such type of platform so that I can deliver my lectures on different topics, whatever assigned by IGNOU's uh, body to me. So, uh, should I start, ma'am, if you permit me? Yes, sir. Yes, sir. You may, sir. Okay, okay. So Sir. let's know. Let's try to see how much students are joining me. Just we are seeing here 13, include 12. Hello, students. Hello, Hello, students. sir. Morning, sir. Hello, 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 hello. sir. Miss Hello, Shalu, sir. Good morning. Sheeta, Anjana. mm, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So if you don't mind, can you switch on your camera, including me, so that we can see each other? Good morning, sir. Very good morning, dear. I request you all students kindly switch on your camera. Okay. Okay. So how are you all, students? Yes, sir. I'm fine. Sir, Okay. So from different parts of the our country, you are uh, pursuing this course, no? So other people's. So as you know that our IGNOUS authority has assigned me some task uh, as a paper. Name is information sources and services. So before starting this session, should I introduce with yourself with each other? You can say. Can you introduce yourself, please, one by one? Firstly, you switch on your camera, then introduce yourself, please. hello. Yes, Mohammed Sir, my name is Mohammed Muntajan. Shlok Raj. Shlok Raj. Slow class. Switch on your camera, please, so that we can see you. Sir, camera open. But your picture is not displaying here. Can you tell me whether which medium will be preferred by you, whether Hindi or English or both? Hindi email. Okay, Hindi Hindi will be medium, sir. preferred. All of you want medium as Hindi. Yes. ओके तो श्लोक राज जी आप प्लीज अपना कैमरा ऑन करेंगे सो दैट हम लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकेंगे. सर, कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है. ओके चलो ठीक है कोई बात नहीं. श्लोक राज जी प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दीजिए आप. सर, अब Hello. हुआ. जी जी श्लोक राज जी सर, अब बोलिए. अब आप दिख रहे हैं. आरसी सेंटर पटना. आरसी सेंटर पटना. जी. ओके तो आपने आपका बैकग्राउंड क्या है बीए है या बीएससी है बीकॉम आपका ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड बताएंगे. बीए है सर, बीए. बीए तुरंत किया जेपी है आपने. यूनिवर्सिटी बीए छपरा. छपरा. नहीं आपने बीए तुरंत किया है कि कुछ सालों पहले किया है. नहीं, तुरंत अभी सेशन लेट चल रहा था तब 2023 में ही कंप्लीट हुआ है. अच्छा बीए कहाँ से किया. छपरा जेपी यूनिवर्सिटी. जेपी यूनिवर्सिटी. जी. ओके ठीक है श्लोक जी थैंक यू. नेक्स्ट नेक्स्ट थैंक यू स्टूडेंट. सर. Good morning, sir. My name is Vanika. I'm from Patna. I did my graduation from Patna University, BCom honors. बीकॉम ऑनर्स. ओके नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज.
गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मेरा नाम मोहम्मद मुंतजिम है। मैं पटना से बिलोंग करता हूँ। मेरा ग्रेजुएशन बीए ऑनर्स है मगध यूनिवर्सिटी से, और पास आउट 2019 में किया हूँ, और 2023 जुलाई में मैंने इनरोल किया है आरसी पटना में। नेक्स्ट स्टूडेंट प्लीज। आई थिंक वी ऑल आर हियर 60। हम लोग 16 लोग हैं यहाँ पे, इंक्लूडिंग मैम, एक्सक्लूडिंग इफ यू एक्सक्लूड मैम देन वी आर ऑल 15% ओनली 3% हैज इंट्रोड्यूस्ड। कोई हेलो और सर। लोग? हाँ जी, हाँ जी। मैं गीता, मैं पुरुलिया से हूँ। आपका अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम सीता परमानिक है। हम्म, मैं पुरुलिया से हूँ। बीए ऑनर्स। जी जी। बीए ऑनर्स किया है। हाँ, इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, विनम्रा भावे यूनिवर्सिटी। ओके, ये करस्पॉन्डेंस यूनिवर्सिटी है या रेगुलर यूनिवर्सिटी है? सर, हजारीबाग यूनिवर्सिटी। हजारीबाग। ओके ओके। Another student please. Hello, am I audible? Yes please, Satyam Ahirwar. Yes, sir. Yes, sir. I'm Satyam. Kindly switch on your camera so that we can see you and you can see me. Sir, I have a glitch in my camera. That's why I'm not turning If it you are on. unable to use on camera, no problem. You can Yes, continue please. yes, sir. My name is Satyam Hirwar. I belong to Indore. I am graduated from Ramjas College, University of Delhi. I have pursued BCom there, and I Ramjas am College. yes, sir. Okay, right now what are you doing? I am pursuing this course, sir. Bachelor's in Life Design. Apart from this course, what are you doing? Sir, I am preparing for competitive exams and services. Which competitive exams? Sir, I am focusing on SSC CGL. SSC. Yes. Okay. Okay. Nice to listen you, Satyam ji. Next. और कोई अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता है प्लीज? और कोई अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता है प्लीज? एनीवन? ओके, तो आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर। यस सर। Yes, sir. ओके, सो हम आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत करते हैं। और आप थैंक यू। सभी ने जिन्होंने अपना परिचय दिया है या जिन्होंने नहीं भी दिया है, आप सभी का इस BLIS कोर्स में स्वागत है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये प्रोफेशनल कोर्स आपकी ज़िंदगी को एक नया आयाम देगा। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे इग्नू के द्वारा जो भी टास्क असाइन किया जाएगा या किया गया है, हम उसको पूरी शिद्दत के साथ निभाएंगे, पूरी शिद्दत के साथ आपके साथ साझा करेंगे। इसी कड़ी में हम आपसे कुछ हमने आपका कुछ परिचय जाना और आपने भी अपनी बारे में कुछ बताया। मैं मेरे बारे में बताना चाहता हूँ कि एज आवर रिस्पेक्टेड शालिनी दीक्षित मैडम हैज इंट्रोड्यूस्ड मी कि मैं कौन हूँ। मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात, गांधीनगर। और मैं आप सभी से इस कोर्स के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी ने कुछ समझ के, कुछ जान के, किसी से पूछ के इस कोर्स में एडमिशन लिया। अगर आप मेरे से, अगर आप मैं हम और आप अगर ऑफलाइन होते तो हम आपसे थोड़ा और रूबरू होते कि भाई क्या सोच के एडमिशन लिया, आपको यही कोर्स क्यों अच्छा लगा, और भी बहुत सारे कोर्स वहाँ क्यों नहीं गए। बट चलिए, एनी हाउ, अब आप इस कोर्स में आए हैं तो फिर हम आपका इस कोर्स में एक एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहते हैं कि इस कोर्स में आपका क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, अभी तक नुकसान मुझे कुछ दिखा नहीं है, फ़ायदा के लिए मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है। अगर आप मुझे परमिट करें तो फिर मैं आपसे 5 मिनट 10 मिनट लूँगा इस कोर्स के बारे में।
अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। यस सर, यस। हेलो, Yes, sir. आप मुझे सुन पा रहे हैं? Yes, sir. जी सर, Yes, सुन sir. पा रहे हैं सर। ओके, सो देखिए, बहुत सारे कोर्स हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, डिफरेंट कॉलेजेस में, बहुत सारे फील्ड्स हैं। हर फील्ड की अपनी अलग वैल्यू, अलग टर्म्स और कंडीशन होती है। इसी प्रकार इसकी भी है। बट BLIS और MLS एक ऐसा कोर्स है कि इस कोर्स से आप सिंपल MA करके बैठ जाएंगे। अगर आप सिंपल MA करके बैठेंगे तो हो सकता है कि आपके पास उतनी अपॉर्चुनिटी ना मिल पाए। बट अगर आपने BLIS कर लिया तो BLIS करने पे आपके पास एक प्रोफेशनल डिग्री हो जाती है। वो प्रोफेशनल डिग्री होने के बाद आप पूरे देश में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, चाहे वो स्टेट हो, चाहे वो सेंट्रल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे इंस्टीट्यूट हो, चाहे स्कूल हो, पूरे देश में जितने भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट हो, जितने भी मतलब एकेडमिक इंस्टीट्यूट कह सकते हैं, वो किसी भी लेवल का हो, हर इंस्टीट्यूट में लाइब्रेरी का एक पूरा सेटअप होता है। और लाइब्रेरी का सेटअप होने की वजह से उन लाइब्रेरीज में डिफरेंट टाइप्स की पोस्ट क्रिएट होती हैं, उन डिफरेंट टाइप्स की डिजिग्नेशंस एग्जिस्ट करते हैं। उन डिजिग्नेशंस में टाइम टू टाइम रिक्रूटमेंट डिफरेंट टाइप्स की बॉडीज के द्वारा किया जाता रहता है। तो एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि अगर आप BLIS हैं और अगर आप MLS हैं तो देश के किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको लाइब्रेरी में काम करने का मौका तो मिल ही जाएगा। 1 साल की कोर्स करने पे किसी भी फील्ड में ऐसा शॉर्ट टर्म कोर्स नहीं जो 1 साल की कोर्स करने के बाद आपको जॉब ओरिएंटेड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा सके, एक्सेप्ट BLIS. This is one of the major advantages who are pursuing BLIS course. I'm sharing to this thing to those persons. Another thing is that कि अब आपके सामने ये एक बात आती है कि भाई कब तक पढ़ाई करेंगे, BLIS करेंगे, फिर MLS करेंगे, उसके बाद क्या काम करेंगे। तो BLIS करने के बाद आपको, अगर आप विलिंग है तो आप MLS भी कर सकते हैं। और आप सोचते हैं कि BLIS करने से क्या फ़ायदा होगा, MLS करने से क्या फ़ायदा होगा, तो इनके अलग अलग मतलब अपने दायरे हैं, अलग अलग सीमाएं हैं। तो जैसे सत्यम, मैं इसमें एक चीज़ सत्यम जी का नाम इसलिए जोड़ना चाह रहा हूँ क्योंकि सत्यम जी SSC की तैयारी कर रहे हैं। सत्यम जी, आप मुझे सुन सकते हैं? यस सर। सत्यम जी, आप मुझे बता सकते हैं कि आप SSC की तैयारी कर रहे हैं तो उस SSC में पोस्ट कौन कौन सी है? कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं? हेलो सर, एम आई ऑडिबल? हाँ, यस, परफेक्टली यू आर ऑडिबल। यस सर। सर, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? आई एम जस्ट आस्किंग for which type of post you are doing to preparation under SSC. सर, किस देयर आर तरह लॉट की पोस्ट के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं SSC में? मतलब SSC में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कौन सी पोस्ट पे जाना चाहेंगे? सर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, हम्म, सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, हम्म, नार्कोटिक्स हम्म, एंड एनफोर्समेंट ऑफिसर। हम्म। यस सर, मेनली दीज। Only these are. आपको इनका डिजिग्नेशन का ग्रेड पे पता होगा? मतलब इनका जो ग्रेड पे लेवल होता है, सैलरी मैट्रिक्स सर, पता होगा? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ग्रुप सी हम्म, and rest are group B post. ग्रुप C and ग्रुप D. I Group think B. ग्रुप C and ग्रुप D. No sir, group B and group C. B for Bombay. Yes sir, yes. Group B and Group C. Okay, that's very good. These are the B and C category groups, ना? Yes. हाँ, तो नो डाउट उसमें बहुत अपॉर्चुनिटी आपकी है और आपने अपार्ट फ्रॉम दैट आप BLIS भी ट्राई कर रहे हैं। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि SSC की जो वैकेंसीज होती हैं उनके अपने निश्चित दायरे होते हैं, निश्चित सीमाएं होती हैं। एक मतलब एक फिक्स ग्रेड पे होता है। आप स्टार्टिंग बहुत इनिशियल लेवल पे करते हैं और एक अच्छी ग्रेड पे पहुंचने के लिए आपको थोड़ा टाइम चाहिए। बट आप सिमिलरली अगर आप इसकी तुलना BLIS MLS से करेंगे ना तो विद इन ए शॉर्ट पीरियड आप बहुत अच्छे ग्रेड पे में जा सकते हैं। सपोज मैं अगर आपसे पूछूं कि आप जो है ग्रुप बी में, आप ग्रुप बी की कौन सी पोस्ट बताए हैं? ग्रुप बी की सर सब इंस्पेक्टर इन CBI नार्कोटिक्स। सब इंस्पेक्टर इन CBI, उसकी सैलरी का ग्रेड पे क्या होगा? These all are comes under 42 level 6 42 लेवल। 4200. ओके, वेरी गुड, आपको इतनी इंफॉर्मेशन है, दैट्स वेरी गुड।
4200 मतलब 4200 ग्रेड पे रहेगा। इनकी Yes, sir. Level अप्रोक्सीमेटली सैलरी लगभग पड़ेगी 70,000 के आसपास। Yes, sir. Am I right? Yes, sir. 65 to 70. Sorry, 65 to 70,000. 65 to 70,000 के आसपास इनकी सैलरी पड़ेगी। बट इन पे बहुत टफ कंपटीशन भी है, बहुत मेहनत भी है। Am I right, सत्यम जी? Yes, sir. है ना? तो आप उसको भी करें, मैं उसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकता। जिनके पास अगर कैपेसिटी है दे कैन डू दैट। हम सिमिलरली अपने कोर्स की तरफ आ रहे हैं। हम कैसे हम अपने कोर्स की किसी और से कंपेयर कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा आइडिया हम आपको शेयर करने जा रहे हैं। सपोज आपने यहाँ पे BLIS 1 साल का कोर्स किया, हम आपको सजेशन देंगे 1 साल का कोर्स MLS भी कर लीजिए। 1 साल का कोर्स BLIS, 1 साल का कोर्स MLS, और MLS करते करते मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप नेट क्वालिफाई करेंगे। जैसे ही आपने BLIS और MLS किया, नेट क्वालिफाई किया, आप एलिजिबल हो गए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, डिग्री कॉलेजेस में असिस्टेंट लाइब्रेरियन, असिस्टेंट प्रोफेसर, डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर, इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, इन सब पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो गए आप। मतलब ये सारी पोस्टों के लिए एलिजिबल हो गए। और जो मैंने आपको काउंट कराया है, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर, इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट, इनका लेवल ग्रेड पे 10 है। लेवल 10 है, ग्रेड पे 56,000 है। मतलब आपकी स्टार्टिंग सैलरी ही लगभग नियर अबाउट 1 लाख से के आसपास होगी। नियर अबाउट 1 लाख से ये डिपेंड करता है कौन से इंस्टीट्यूट में जाएंगे। कभी आप सेंट्रल में चले गए तो ये 1 लाख से ऊपर से ले गए, स्टेट में रह गए तो वो 1 लाख से 1-2-3,000 या 1,500 ये कम होगा। ये आपकी 2 से 2.5 साल की मेहनत है। 2 से 2.5 साल की मेहनत के बाद आप लेवल 10 और ग्रेड पे 6,000 के लिए आप एलिजिबल हो गए। ये BLIS MLS की ताकत है। पूरे देश में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, उनके प्रोफेसर्स की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी 1 लाख से स्टार्ट होती है। तो ये BLIS MLS की ताकत है। तो अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब ये है, आप जहाँ भी हैं बहुत अच्छी जगह हैं। जरूरत इस बात की आप मेहनत करके पढ़ें, आप खूब अच्छे से मन लगा के BLIS करें, फिर MLS करें। हम आपसे कहेंगे कि MLS करते करते नेट क्वालिफाई करें। नेट इज ए login ID and password to enter in higher education. If you want to go in universities and state universities, central university colleges, then you have to have qualify UGC net examination. और नेट कैसे होगा? BLIS करेंगे, उसके बाद MLS करेंगे। MLS में 55% मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी, आप नेट के लिए एलिजिबल हो गए। 1-2 प्रयास में नेट आपका निकाल देंगे। जैसे नेट निकल जाएगा आप एलिजिबल हो गए पूरे देश में किसी भी इंस्टीट्यूट में काम करने के लिए। ये इस कोर्स का एक मतलब एक प्लेटफॉर्म कह सकते हैं। ये एक ऐसा आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है कि आप उस लिमिटेड पीरियड के मेहनत करने के बाद आप इन जगहों पे जा सकते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो हमारा ये कहने का मतलब है, आप मेहनत से पढ़ेंगे, कुछ भी किसी को दिक्कत होती है तो हम लोग आपस में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? और इसके बाद आपके पास मेरा नंबर तो है ही है, नहीं होगा तो मैम से आप लोग ले सकते हैं। हम आपके नहीं है सर। नहीं, हम शेयर कर देंगे, डोंट वरी, हम शेयर कर देंगे आपके पास। तो आज हम आपका जो सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो सेशन हमारा जो हमको असाइन हुआ है वो है हमारा इंफॉर्मेशन सोर्सेस एंड सर्विसेज। तो हम आपको अपना सेशन स्टार्ट कर दें या कुछ आप शेयर करना चाहते हैं? Sir, I have a doubt. MLIS is of 2 years or 1 year? सत्यम जी, यू आर परसुइंग BLIS, दैट इज 1 year ना? Yes, sir. BLIS is 1 year. I am talking about MLIS, Masters Yes, in same. Language. Similarly, I'm just trying to say similarly, MLS is also 1 year. Okay. Thank you, sir. There are some institutes which are offering 2 years integrated course, just like my institute is offering 2 years integrated MLS course. If you want to pursue, यदि आप MLS 2 साल का करना चाहते हैं, तो जिस इंस्टीट्यूट में मैं वर्किंग हूँ वहाँ पे 2 years का इंटीग्रेटेड MLS प्रोवाइड कराया जा रहा है। उस कोर्स में आपको विजिट करने की कोई जरूरत नहीं होती, सीधे 2 years तक आप पढ़ेंगे और आपके पास MLS की डिग्री आ जाएगी। यस प्लीज सर, ब्लिस के बाद एमलिस तुरंत कर सकते हैं कि उसके लिए एमए करना पड़ेगा? तुरंत करेंगे। तुरंत एमए की डिग्री नहीं चाहिए उसके? हाँ जी,
उसके लिए एमए की डिग्री नहीं चाहिए, जैसे ग्रेजुएशन करने के बाद ब्लीच कर सकते कोई, हैं, उसके बाद तुरंत मैंने कहा ना, बिल्कुल बिल्कुल श्लोक राज जी, आपके मन में बहुत सारी डाउट है। कोई डो नो नीड टू अनदर डिग्री, कोई और दूसरी डिग्री की कोई जरूरत नहीं। जस्ट बीएलआईएस करिए आप, फिर एमएलआईएस करिए। बस मेरा सिर्फ इतना मतलब है, बीएलआईएस की जो स्टडी है उसको कंटिन्यू करके एमएलआईएस करेंगे तो आपके लिए यूजीसी नेट क्वालिफाई करना बहुत इजी हो जाएगा। उसके लिए अदर मैंने वो एमए की डिग्री नहीं चाहिए। नो, कोई भी और किसी चीज की कोई डिग्री नहीं, सिर्फ बीएलआईएस। तुरंत बीएलआईएस करने के बाद एमएलआईएस में एडमिशन ले लीजिए आप, और वो भी 1 ईयर का होगा। जैसे एमएलआईएस आप में एडमिशन लेंगे, 6 महीने आपके पार होंगे, मतलब पहला सेमेस्टर पार होगा, आप यूजीसी नेट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। उधर आप यूजीसी नेट भी देंगे, उधर एमएलआईएस का सेकंड सेमेस्टर भी करेंगे आप। और सर 2 साल का एमएलए सब बोले हैं, किस यूनिवर्सिटी में कराया जाता है आप? वो हमारी यूनिवर्सिटी में होता है, जैसे हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे 2 इयर्स का चल रहा है। साथ कल्याणी यूनिवर्सिटी में आई एम नॉट वेरी श्योर, अभी तो काफी यूनिवर्सिटी ने 2 साल की जगह उन्होंने 1-1 साल को कंटिन्यू कर दिया, क्योंकि 2 साल में क्या होता है कि बच्चा पूरी तरह बंध जाता है। 1 साल में क्या, जैसे आपने बीएलआईएस किया और हमारी यूनिवर्सिटी में 2 साल का एमएलआईएस होता है, और आपने 1 साल का बीएलआईएस किया। जैसे आपने 1 साल का बीएलआईएस कंप्लीट कर लिया, आपके पास एक डिग्री हो गई बीएलआईएस की। ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिग्री आपको डिफरेंट टाइप के इंस्टीट्यूट, चाहे वो केवीएस हो, एनवीएस हो, और दिल्ली सबॉर्डिनेट हो, ये सब बहुत मात्रा में, बहुत संख्या में जो वैकेंसीज निकालती हैं। और अगर आपके पास उस वैकेंसीज में केवल बीएलआईएस की डिग्री ही मानते हैं, एमएलआईएस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एमएलआईएस है, दैट्स वेरी गुड, अगर नहीं है तब भी कोई बात नहीं। तो अगर आपके पास बीएलआईएस 1 साल की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये फायदा बीएलआईएस और एमएलआईएस अलग अलग करने में होता है। एक साथ करेंगे तो जब तक आपके पास एमएलआईएस कंप्लीट नहीं हो जाएगा, 2 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा, और उस 2 साल में वो वैकेंसी दोबारा आती है या नहीं आती है ये तो फिक्स नहीं है ना। ओके सर। मेरी बात समझ रहे हैं आपको? Yes. एनीथिंग एल्स, कुछ और कोई पूछना चाह रहा है? किसी के मन में कुछ और डाउट है, कुछ पूछना चाह रहा है? सर जैसे मैंने बीएलआईएस कर रही हूँ ताकि मेरी केवीएस और आर्मी स्कूल में जॉब लगे, तो उसके लिए एमएलआईएस अगर मैंने किया है तो वो बेनिफिशियल होगा मेरे लिए? हाँ, क्यों नहीं होगा। आपने एमएलआईएस कर लिया कि करेंगे आप? सर अभी मैंने बीएलआईएस कर रही हूँ, बट जैसे मेरी जॉब है ऑलरेडी, बट आई एम ट्राइंग फॉर बीएलआईएस। मेरी आर्मी स्कूल में ऑलरेडी जॉब है, बट मेरे को बीएलआईएस करना है, क्योंकि हम लोग हर जगह पे ट्रांसफर होते रहते हैं, तो टीचर्स की ज्यादा वैकेंसीज नहीं निकल पाती हैं हर जगह। तो इसलिए, और मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग अभी यहाँ बरेली में हो रखी है, मैंने भी बरेली हरा लिया। बट ये होता है ना कि लाइब्रेरियंस के लिए हो जाता है कि ठीक है, आपको हर जगह पे वैकेंसीज मिल जाती हैं इजीली। तो नहीं, इसलिए मैंने बोला कि आपने आपने कौन से इंस्टीट्यूट की बात की? आर्मी में, आर्मी पब्लिक स्कूल में? हाँ। सिर्फ बीएलआईएस मांगते वहां पे। ओके, तो मतलब केवल अगर BLIS एमएलआईएस करने का मन हो तो फिर आप कर सकते हो। मैंने कहा ना, एमएलआईएस आपको जम करा देगा। बीएलआईएस आपको 42 ग्रेड पे तक ही रखेगा, मैक्सिमम आप 4600 तक जा सकते हैं। सपोज अगर दिल्ली सबॉर्डिनेट में आपको मौका मिलता है तो बीएलआईएस के बेस पे आप 4600 तक जा सकते हैं, जो आपको सैलरी देगा 65 to 70,000 के आसपास सैलरी देगा बीएलआईएस। लेकिन अगर आपने एमएलआईएस कर लिया, एमएलआईएस के साथ नेट क्वालिफाई कर लिया, तो वही 65,000, वही 60,000, वही 45,000 आपको सीधे 1 लाख पे पहुंचा देगा। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप बीएलआईएस तक अपने को रोक लेते हो या बीएलआईएस के बाद अपना सफर कंटिन्यू करके एमएलआईएस और नेट तक पहुंचाते हो। ओके, थैंक यू सर। और किसी के मन में कुछ डाउट हो? Anyone have any doubt regarding BLIS MLS course? तो हमें शुरू करना चाहिए। Yes, sir. Okay. So let's start our today's session, that is totally based on documentary sources ना। हमारा जो टॉपिक है इंफॉर्मेशन सोर्सेस एंड सर्विसेज। इंफॉर्मेशन सोर्सेस एंड सर्विसेज में हमारा जो पहला ब्लॉक है डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस,
उससे स्टार्ट करेंगे। तो आपको मेरी स्लाइड दिख रही है? सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ प्लीज बोलिए। सर जैसे आपने कहा कि बिलीज करने के बाद एनबीएस केवीएस आर्मी स्कूल इस सब में एलिजिबल हो जाइएगा, तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्या कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट भी देना होता है? जैसे टीचर के लिए सीटेट निकालना ये है हाँ मैंडेटरी है, तो हाँ। इसके लिए भी कोई मतलब ऐसा कॉमन टेस्ट भी देना पड़ता है क्या सर? अभी तक कोई भी टेस्ट एडिशनल नहीं जोड़ा गया लाइब्रेरियन के लिए। जैसे केवीएस का टेस्ट होता है ना, तो केवीएस में आपको टीचिंग करने के लिए बीएड और टीजीटी पीजीटी जो भी चलता है, सीटेट जो भी चलता है, ये सब होना चाहिए। लाइब्रेरी साइंस में अगर आप केवीएस में लाइब्रेरियन की पोस्ट पे अप्लाई करोगे तो आपको कोई भी और डिग्री की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट बीलिप। बीलिप के अलावा ना कोई सीटेट, ना कोई सुपर टेट, ना कोई स्टेट टेस्ट, ना कोई और एडिशनल क्वालिफिकेशन, कुछ भी नहीं, सिर्फ बीलिप। और अगर आपके पास 1 साल का मान्यता प्राप्त कंप्यूटर कहीं से भी हो, कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सर मैंने भी सुना है कि ब्लीच करने के बाद स्टेट और ये बीपीएससी क्वालिफाई होने के बाद ही होगा। हाँ, ये आपने सुना है तो गलत सुना है। केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, दिल्ली सबॉर्डिनेट, जितने भी ये सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कूल हैं, उसमें लाइब्रेरियन के लिए सिर्फ और सिर्फ बीलिप की रिक्वायरमेंट होती है। डिजायरेबल मतलब वांछनीय योग्यता होती है, उसमें 1 साल का कंप्यूटर कोर्स मतलब मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से होना वांछनीय है, नॉट अनिवार्य। अनिवार्य नहीं, वांछनीय होता है। इसके अलावा कोई भी सीटेट वगैरह की कोई भी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके सर, थैंक यू सर। सिंपल आप बीएलआईएस करेंगे, बीएलआईएस करने के बाद सिंपली आप जो है आप डिफरेंट टाइप्स के एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो गए। अब मैं आपको पोस्ट गिना रहा हूँ कहाँ कहाँ एलिजिबल हो गए। जैसे आपने बीलिप कर लिया, तो बीलिप करने के बाद देखिए लाइब्रेरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी असिस्टेंट, प्रोफेशनल असिस्टेंट, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, लाइब्रेरियन इन केवीएस, लाइब्रेरियन इन नवोदय विद्यालय, लाइब्रेरियन इन दिल्ली सबॉर्डिनेट, जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट, सीनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट। These are all the posts which are filled against BLIS degree. मेरी बात समझ में है आपको? जी सर, थैंक यू सर। इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आपको केवल 1 साल के कोर्स पे करने पे मिलती है। दुनिया का कोई कोर्स इतनी सारी अपॉर्चुनिटी नहीं देता BLIS को छोड़ करके। बस जरूरत क्या है कि आपको पूरी शिद्दत के साथ इस कोर्स को कंप्लीट करना है, मेहनत के साथ। जितने भी नॉर्म्स है, जितने भी रूल्स हैं इग्नू के, उनको पूरी तरह फॉलो करके और आप पूरी ऑनेस्टी से जो है इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। सर एक और क्वेश्चन था, हाँ, ये जी बोलिए। प्रैक्टिकल असाइनमेंट ये सब ऑनलाइन सबमिट करना होगा या हार्ड कॉपी? ये आप कोऑर्डिनेटर से पूछिएगा, ये मेरे लेवल की बात नहीं है। ओके सर, थैंक मैं मेरे कंटेंट पे बता सकता हूँ आपको। जी ओके सर। और किसी को कुछ रिक्वायरमेंट? यस सर, आई हैव अ क्वेश्चन। जी प्लीज। सर जैसे हम अदर सब्जेक्ट से जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं अपनी, तो सर उसमें हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर हम अप्लाई करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, सर यूजीसी नेट के साथ अब पीएचडी भी कंपलसरी कर दी है, तो सर इसमें भी अगर हम यूजीसी, सर मैंने सुना था कि मतलब जो यूजीसी नेट वाले को तो अपॉर्चुनिटी मिलती है, पर जहाँ पीएचडी होती है उनको ज्यादा मिलती है। That is another level. Who's you? Who are you? Who are you? Who's सर asking? आई एम हिमांशी सर। हिमांशी जी, उसके लिए एक अलग लेवल होता है, उस पे भी हम डिस्कस कर लेंगे। पीएचडी वाज मैंडेटरी एज पर 2000 आई थिंक 20 or 19, but right now it is desirable. It is not mandatory qualification for the post of assistant professor, assistant librarian, assistant documentation officer. All these posts are not required PhD is not mandatory. That's why I'm saying to all of you कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि भाई BLIS कर लो, MLS कर लो, MLS करते करते नेट क्वालिफाई कर लो, बस उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो गए। अगर आपकी इच्छा करती है तो आप पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। सपोज आपने BLIS कर लिया और MLS कर लिया, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। अगर आपने BLIS कर लिया, MLS कर लिया और MLS करने के बाद आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, JRF क्वालिफाई कर लिया, अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया तो मेरा मानना है
कि लाइब्रेरी साइंस में नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करना आसान है इन कंपैरिजन टू अदर सब्जेक्ट, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का जो दायरा है ना वो आपके पकड़ में आ जाता है। आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उन क्वेश्चन पेपर के बेस पे आपको लगेगा कि नहीं अगर हम इसमें अच्छे से मेहनत कर लें तो हम बीएलएस हम एमएलएस में करने के बाद नेट भी क्वालिफाई कर सकते हैं, जेआरएफ भी क्वालिफाई कर सकते हैं। और अगर आपने बहुत अच्छी मेहनत किया, एमएलएस के साथ साथ आपने नेट और जेआरएफ भी क्वालिफाई कर लिया, तो नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करने के साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, असिस्टेंट डॉक्यूमेंटेशन ऑफिसर के लिए एलिजिबल तो हो ही गए। इसके साथ साथ आप अगर आपको इंस्टेंटली जॉब नहीं मिल पा रही, क्योंकि जॉब क्राइसिस हर जगह हमारे भी फील्ड में है, आप अकेले बीएलएस नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बीएलएस करके हुए आते हैं, फिर आपको उसमें से उन लोगों की भीड़ से अपने को अलग करना है। तो अलग करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। जब आप मुझसे बात करेंगे कुछ और कुछ इसके लिए अलग सेशन चलाएंगे तो उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि एक ही पोस्ट होती, 2 पोस्ट होती, 3 पोस्ट होती, उनमें फाइट बहुत होता है। तो उसमें हम अपने आप को कैसे अलग करें, उसके लिए भी कई रास्ते होते हैं, कई तरीके होते हैं, हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन अगर आपके पास बीएलएस एमएलएस करने के बाद नेट और जेआरएफ आ रहा है तो मेरा पहला सजेशन रहेगा कि अगर जॉब मिले तो जॉब कर लो, नहीं जॉब मिली तो पीएचडी में एडमिशन ले लो। अब बोलो पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आज की डेट में गवर्नमेंट ने पीएचडी में एडमिशन लेने के बाद अगर आपके पास जेआरएफ है तो आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप गवर्नमेंट देने लगी है। पहले भी देती थी, पहले फेलोशिप कम होती थी। आज की डेट में 42,000 टू 47,000 फेलोशिप आपको पीएचडी करने का मिलेगा। इसीलिए मैं आपके पर फोकस कर रहा हूं कि आप बीएलएस करके एमएलएस करके नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करो। आपने पूरी मेहनत अभी बीएलएस से शुरू कर दी ना करना, क्योंकि वो नेट और जेआरएफ वाला स्टेप ना वो आज से ही स्टार्ट हो जाएगा। आपने आज के आपके दिमाग में एक एक कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर होना चाहिए कि भाई हमको किसी भी कीमत में नेट और जेआरएफ करना है। वो अगर आप इंटेंशन लेके चलेंगे तो फिर आप यकीन मानिए कि आपका नेट भी क्वालिफाई होगा, जेआरएफ भी क्वालिफाई होगा, और नौकरी मिलेगी तो नौकरी करेंगे, नहीं मिलेगी तो फिर पीएचडी करेंगे। पीएचडी करेंगे तो जब तक पीएचडी करेंगे तब तक 40 से 50 हजार रुपए गवर्नमेंट से लेते रहेंगे 5 साल तक, और उस 5 साल में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट तो ले ही लेंगे। एम आई राइट और रॉन्ग? यस सर। यस सर। यस सर। तभी मैं आप सभी से कह रहा हूं कि प्लीज आप अपने दिमाग में एकदम विजन क्लियर रखिए, अभी से पूरी मेहनत करना शुरू कर दिए, एक एक कंटेंट एक एक टॉपिक पे डेप्थ में जाएंगे। केवल बीएलएस कंप्लीट कर लेंगे और इग्नू से पास हो जाएंगे, ऐसी धारणा बिल्कुल मत रखिएगा। कंटेंट के अंदर जाइएगा, कंटेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। उसमें अगर कोई दिक्कत आती है तो आप अपने कंसर्न काउंसलर से या इवन मैं, आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। क्लियर? सर अपना नंबर था शेयर कर दीजिए ना प्लीज। हाँ, मैं सब कुछ कर दूंगा। क्लियर हो गई मेरी बात आपको? जी सर। यस सर। चलो तो स्टार्ट करें हम। यस सर। यस सर। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, दैट इज अब आप मुझे ये बताएं कि ये विजुअल हो रही है आपको? यस सर। यस सर। यस सर। स्लाइड विजुअल हो रही है? यस सर। ओके। So this is my topic, that is documentary sources, और ये मेरा ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपकी स्क्रीन में शो हो रहा होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस है, और डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस को हम लोग देखिए रन हो रही है सर। पहले वाले स्लाइड पे है सर। हाँ, मैं पहली स्लाइड पे हूँ। जी जी सर। अभी आपको मेरी फुल स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ओके, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज, वी विल डिस्कस ऑन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। तो पहले मुझे ये सोचना पड़ेगा कि व्हाट इज डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज।
कोई बता सकता है, किसी के पास आइडिया है डॉक्यूमेंट्री क्या होती? मतलब डॉक्यूमेंट से डॉक्यूमेंट्री बना है, तो हैव यू एनी आइडिया डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज अबाउट? डॉक्यूमेंट में होता क्या, पहले बता सकते हैं? व्हाट डॉक्यूमेंट्री हैव, क्या होता है डॉक्यूमेंट्री में? एनीवन, कोई स्टूडेंट बताएगा? देखिए इंटरेक्शन ना बोथ साइड में होना चाहिए, अकेले मैं ही बोलता रहूंगा, मैं ही आपको कहता रहूंगा और आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आएगा तो फिर मजा नहीं आएगा टीचिंग करने में। हेलो यस सर। किसी के पास कुछ भी आइडिया और डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस में क्या होता है? देखिए किसी भी डॉक्यूमेंट्री में होता क्या है, डॉक्यूमेंट में क्या होगा, इंफॉर्मेशन होगी। आपको ये स्लाइड दिख रही है मेरी, जो दूसरी स्लाइड है मेरी? पहली स्लाइड ही दिख रही है सर। पहली दिख रही है जी, ब्लॉक 1। Oh, it is not running. यस सर, आ गया सर। आ गया? यस। तो देखिए अब ये रन हो रहा है, मेरी स्लाइड में आपको एनिमेशन दिख रहे हैं? जी सर, व्हाट इज इंफॉर्मेशन डैश डैश व्हाट, ये वाला स्लाइड दिख रहा है सर। नहीं, व्हाट इज इंफॉर्मेशन डैट डैश क्वेश्चन मार्क, उसके बाद पूरी स्लाइड दिख रही है कि ब्लैंक दिख रहा है? पूरी स्लाइड दिख रही है सर। पूरे कंटेंट दिख रहे हैं? जी जी। मीन टू से दिस स्लाइड इज नॉट रनिंग, मतलब ये स्लाइड एनिमेशन पे नहीं हो रहा है। वही सिर्फ दिख रहा है, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, द कलेक्शन ऑफ डाटा व्हिच इज प्रोसेस्ड स्ट्रक्चर नॉन एज। ओके, नो प्रॉब्लम। देखिए हम पूछते हैं व्हाट इज इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन को हम ऐसे समझेंगे कि पहले हम मतलब डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज पे बाद में आएंगे, डॉक्यूमेंट में होता क्या इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन को समझेंगे। द कलेक्शन ऑफ डेटा, मतलब डेटा को कलेक्शन होता है, डेटा को कलेक्ट करते हैं, तो कलेक्शन ऑफ डेटा, जो कि 3 काम किए जाते हैं डेटा को कलेक्ट करने के बाद। पहला प्रोसेस्ड, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, फिर उसको स्ट्रक्चर्ड किया जाता है। ये जब तीनों काम हो जाते हैं तो इस तीनों कामों को करने के बाद जिस चीज को हम जानते हैं दैट इज कॉल्ड नोन एज इंफॉर्मेशन। मेरी बात समझ रहे हैं सर? क्या ये 2 to 8 का हो रहा है? 2 to 8 नहीं है, इंफॉर्मेशन सोर्सेस एंड सर्विसेज, ये कौन सा है? 2 to 2 ट्रिपल 2 का हो रहा है। ओके सर। ठीक है, तो मैंने कहा कि कलेक्शन ऑफ डेटा विच इज प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड, स्ट्रक्चर्ड, विच इज नोन एज ए इंफॉर्मेशन। डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, स्ट्रक्चर करते हैं, उसको हम किस नाम से जानते हैं? इंफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। और ये इसको अगर हमको एक लाइन में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे? द कलेक्शन ऑफ डेटा विच इज प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड, इट इज नोन एज इंफॉर्मेशन। इट प्रोवाइड्स, अब ये करता क्या है, इंफॉर्मेशन क्या करता है? इट प्रोवाइड्स डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी टू यू। ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंफॉर्मेशन यू विल बी एबल टू टेक सम डिसीजन रिगार्डिंग एनीथिंग। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी तो आप डिसीजन एनेबल पर्सन कैसे बन पाओगे? तो बेसिकली ये इंफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट है, कलेक्शन ऑफ द डेटा जो कि प्रोसेस किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है, स्ट्रक्चर्ड किया जाता है, उसी को हम जानते हैं इंफॉर्मेशन के रूप में। ठीक है, इस पहली वाली स्लाइड में कुछ दिक्कत तो नहीं किसी को? नो सर। क्लियर? नो सर। यस सर। ओके, दूसरी स्लाइड पे हम गए कि नहीं गए अभी? नहीं गए सर। बटी सोर्स नहीं दिख रहा है? नहीं नहीं सर, सर। आ गया सर। पूरी मेहनत खराब हो गई, क्योंकि अगर आपके पास एनिमेशन आ गया। आ गया नहीं सर। नहीं एक्चुअली ये एनिमेशन इफेक्ट नहीं दिख रहे ना इस पे। चलो एनी हाउ, व्हाट इज सोर्स? F5 छोड़ मैगी। हेलो, F5 पे क्लिक करो सर, जब एनिमेशन आ जाएगा। नहीं आ रहा ना, मैं तो चला रहा हूँ, ये देखो मैं चला रहा हूँ। स्लाइड शो करो सर, ये वैसे है आपकी स्लाइड शो पे एनिमेशन शो होता है। अरे F5 पे क्लिक करो एक बार। अरे हाँ, बट शो नहीं हो रहा भाई। F5 भी कर चुका हूँ, नीचे स्लाइड शो का आइकन होता है उस पर भी क्लिक कर चुका हूँ, हो ही नहीं रहा है। अच्छा, राइट हैंड पे नीचे स्लाइड शो का ऑप्शन होता है, उस पे कर रहा हूँ, वो भी नहीं हो रहा है, तब भी नहीं हो रहा है।
मतलब ये एनिमेशन आप में नहीं शो हो रहा है। सर ऊपर प्रेजेंटर व्यू होगा सर। प्रेजेंटर व्यू हाँ प्रेजेंटर। में किस जगह होगा? हाँ प्रेजेंटर व्यू से क्या है ना सर, अभी आपका पीपीटी लेफ्ट में दिख रहा है सब, और बीच में वो जैसे जैसे आप अगला बढ़ रहे हैं वो जस्ट बीच वाला भी दिख रहा है और साइड वाला भी दिख रहा है। तो प्रेजेंटर व्यू में वो कंप्लीट पूरा आएगा, और जैसा ही बच्चा बोल रहा है तब आप F5 दाबिए, और ऐसे नहीं भी कीजिएगा तो कोई इश्यू नहीं सर, अब बहुत बढ़िया से आपका दिख रहा है। नहीं मैम, एक्चुअली मैं ये कह रहा हूँ कि कैसे प्रेजेंटर में हम क्लिक करेंगे क्या? हाँ सर प्रेजेंटर व्यू में सर। प्रेजेंटर व्यू कहाँ पे होगा मैम? ये ऊपर होना चाहिए राइट साइड में, मैम स्टॉप सबसे प्रेजेंटिंग, ऊपर राइट साइड। स्टॉप प्रेजेंटिंग दिखला रहा है। ये बच्चा जो बता रहा था बाबू फुल स्क्रीन कैसे आएगा? F5 मैम देखिए सर अभी तो सर एक बार स्टॉप हो शेयर गया। कीजिए आप एक बार। हाँ फिर से शेयर कीजिए सर। आजा। देखो चश्मा कहाँ है मेरा? Mahi ma'am, can you please mute your speaker? Oh, sorry, माही sorry. जी काइंडली म्यूट कीजिए। यस एंड समबडी प्लीज असिस्ट सर, क्योंकि सर मैं अभी एक बार जो दूसरा राइट में काम। आपके राइट में आप, यस मैम यस समबडी प्लीज असिस्ट अश्वनी सर। और मैं अभी थोड़ा दूसरा मैं अभी जा रही हूँ वर्क पे, तो थोड़ा सा सर को असिस्ट आप लोग, मैं इसमें जुड़ी हुई हूँ, आई स्टे अटैच्ड, बट थोड़ा ओके। सर को अब थोड़ा, हाँ प्लीज, थैंक यू सो मच। सर जहाँ से जूम इन और जूम आउट का वो है ना, आपके राइट साइड में कॉर्नर पे देखो। अश्विनी सर आप म्यूट पे हो सर, म्यूट पे हो। मैं कह रहा हूँ इसमें स्टॉप प्रेजेंटिंग दिखला रहा है। सर एक्चुअली ये वो तो आया ही नहीं है, स्लाइड शो में तो आई नहीं है आपकी स्लाइड्स, ये तो ओनली उसमें जो व्यू होता है ना, ओनली व्यू में चल रहा है, जहाँ पे हम एडिट वगैरह कर सकते हैं इसको। नहीं, आपका आपका स्लाइड शेयरिंग नहीं है ये? स्लाइड शेयरिंग तो है बट सर इसमें स्लाइड शो वाला नहीं आ रहा। हाँ यही तो मेरा मतलब है ना, मैं कह तो रहा हूँ कि इसमें जो मेरे आप एक बार पास सर इस पे क्लिक करना, आपके जो राइट साइड में जूम इन और आउट है, इसके साइड में एक बॉक्स सा बना हुआ है कंप्यूटर टाइप में, एक बुक का सिंबल है, सिंबल के जस्ट राइट की साइड, राइट साइड में, मेरे राइट साइड में जहाँ तो नोट्स कमेंट्स लिखे हुए हैं नीचे, इनमें जो फोर्थ सिंबल है इसके ऊपर क्लिक करना है एक बार। एक मिनट सर सबसे अच्छा जो आपका लेफ्ट में जो बना हुआ है पीपीटी वाला सर, जिस स्लाइड पे उसको डबल क्लिक कीजिए तो अपने बड़ा हो जाएगा। आप थर्ड स्लाइड पे सर, थर्ड स्लाइड पे जाके लेफ्ट वाला, बीच वाले में नहीं, लेफ्ट में जाके डबल क्लिक कर दीजिए। आई थिंक स्टिल इट इज नॉट मैम। एक्चुअली इसमें मेरे पास राइट हैंड में एक ऑप्शन दिखला रहा है स्टॉप प्रेजेंटिंग का, पैरेलल उसी के लेफ्ट साइड में दिखला रहा है कि विजिटर्स आर इन द मीटिंग देन दिस कॉल इज बीइंग रिकॉर्डेड। इसके हाँ वो अलावा तो रिकॉर्ड हम लोग की तरफ से हो रहा है सर। मैम इसके अलावा और उसमें कोई ऑप्शन शो नहीं हो सर रहा। आप तो सर लैपटॉप से कर रहे हैं, जी तो सर जो तीसरा वाला स्लाइड है वो लेफ्ट साइड में जो पैनल बना हुआ है, 1 2 3 4 स्लाइड जो है, उसी थर्ड स्लाइड में अपना ये आइकन लेके जाइए सर माउस से, और वहां डबल क्लिक कर दीजिए तो वो बड़ा हो जाएगा। मैम स्लाइड पे ही रह करके, कि अपनी स्लाइड पे जा करके?
हाँ, स्लाइड पे जाके सर डबल क्लिक कीजिए सर। मैम डबल क्लिक मैंने कर दिया है, बट मैं बच्चों से पूछ रहा हूँ तो दिख नहीं रहा है, मतलब एनिमेटेड स्लाइड नहीं दिख रही है उनको। नहीं, एनिमेटेड तो नहीं दिख रही है सर। बस यही मेरा मतलब, वो तो दिखेगी, बच्चों को पूरी दिख रही है, बट मैं हाँ एनिमेटेड हाँ जिस तरीके से मैं मतलब कंटेंट को प्रेजेंट करना चाह रहा हूँ वो चीज एनिमेशन के थ्रू ही होती, बट चलिए एनी हाउ, बस मैं यही जानना चाह रहा हूँ, बाकी तो हो रहा है मैम, बाकी तो मैं उसको दिखा पा रहा हूँ बच्चों को। चलिए एनी हाउ मैं करता हूँ। मैम मैं स्टार्ट कर दूँ? हाँ, श्योर सर, श्योर सर। और सर आप क्लास लीजिए, मैं थोड़ा दूसरा पेपर वर्क कर रही हूँ। नो डाउट। हाँ, तो आप सर जैसे मतलब चूंकि 1 बजे तक है, आप देख लीजिए सर, जब कन्वीनियंट रहे जब तक, तो फिर आप लीव कर जाइएगा सर। ऐसे मैं कनेक्टेड हूँ सर, कोई इश्यू नहीं है। ओके ठीक है, थैंक यू मैम। जी सर, थैंक यू सर। ओके मैम। तो स्टूडेंट्स आपको मेरी स्लाइड दिख रही है तीसरी वाली? यस सर। यस सर। तीसरी वाली स्लाइड सेइंग व्हाट इज सोर्स। तो एज यू नो सोर्स, हैव यू एनी आइडिया सोर्स के बारे में? कुछ आइडिया किसी को? किसी को कुछ आइडिया? हेलो सत्यम? सर सत्यम एनी आइडिया? हेलो सत्यम जी। सर आपको मेरे कैमरे में ये दिख रहा है, एक बार देखना आप जो ये वाला ऑप्शन है। एक मिनट, हाँ जी बताइए। ये जो ऑप्शन है, स्लाइड शो का आइकॉन? हाँ हाँ सर, ये आपके इसमें है ना, इसके ऊपर क्लिक करके देखिए एक बार, मे भी हो जाए यहाँ से। मेरे में नहीं हो पाएगा ना अच्छा, भाई। इसमें हो ही नहीं रहा है। स्लाइड शो का जो सिंपल, अगर आप स्लाइड शो चाहें तो हो जाएगा, बट मैं अगर कंटेंट को एनिमेटेड चाहूंगा कि एनिमेटेड वे में हो, तो नहीं हो पा रहा है भाई। मेरे को पता है F5 और स्लाइड शो के दो आइकन, दो चीज होते हैं, दो वे होते हैं, आप उनके थ्रू सर कर। मे भी फिर इसमें मीटिंग में ही वो अलाउड नहीं होगा या तो। हाँ बस मैं ये मतलब, इसके पहले भी मैं डिफरेंट जगह मैंने प्रेजेंटेशन किया तो उसमें भी एनिमेशन नहीं हो पा रहा, तो मैं समझा हो सकता है इसमें कुछ अपडेट कर दिया हो, तो हो सकता हो। नहीं सर, फिर ये जीमेल मीटिंग है इसलिए इसमें होगा नहीं अलाउड। हाँ तो इसमें फिलहाल वो ऑप्शन है नहीं। ओके सर। ठीक है, तो सोर्स, हैव यू एनी आइडिया अबाउट सोर्स? व्हाट इज सोर्स? किसी को कुछ आइडिया है सोर्स के बारे में? सोर्स क्या होता है? तो सर एक ऑफिशियल बुक टाइप लगा बोल सकते हैं हम, जैसे जहाँ से हम अपनी इंफॉर्मेशन लेते हैं। ऑफिशियल बुक, ओके। अनदर पर्सन? ओरिजिन भी सर बोल सकते हैं, जहां से किसी चीज का ओरिजिन होता है। शाहिल जी? जी जी सर। शाहिल जी आपने मेरे को लेट में ज्वाइन किया? हाँ सर, थोड़ा सा लेट हो गया था। चलिए, मुंतजिम जी? यस सर। व्हाट इज सोर्स सर जहाँ से कोई चीज की उत्पत्ति होती है, जैसे मान लीजिए एक स्टैंडर्ड, मान लीजिए बुक, मान लीजिए एनसीईआरटी, तो उसमें डिफरेंट सोर्सेज दिया हुआ रहता है सर, उसी को हम लोग गेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड सोर्स। और किसी ने कुछ आइडिया? जस्ट मिनट। बेटा yes please, somebody have some another idea? आकाश जी? हेलो यस सर। आकाश जी, एनी आइडिया? सर सोर्स का तो मेरे को एक यही लगता है कि कोई इंफॉर्मेशन जहाँ से हम लेते हैं। Source mean to say a particular point from where we get something. We get particular, that is called source, or can say place, जहां पे हम किसी भी अपनी पर्टिकुलर चीज को, पर्टिकुलर नीड को फुलफिल करते हैं, या कह सकते हैं कि उसको हम प्राप्त करते हैं, दैट इज कॉल्ड सोर्स। तो in the context of information, what we can understand source,
source, the as per this slide it is showing the source from where we get something or concerned thing. एक ऐसा स्रोत जहां से हम किसी चीज को या किसी संबंधित चीज को प्राप्त करते हैं. अब दूसरी मैंने लाइन में इसको बताने की कोशिश किया है, अ पॉइंट फ्रॉम वेयर वी गेट रिक्वायर्ड थिंग्स. हमें कुछ भी रिक्वायर्ड थिंग होगी, उसको हम जिस पॉइंट से प्राप्त करते हैं उसी को हम सोर्स के नाम से जानते हैं. A person, a point from where we get required things, that is known as a source. तो अब आप ये बताएं कि आपको ये स्लाइड इंफॉर्मेशन, व्हाट इज इंफॉर्मेशन एंड व्हाट इज सोर्स क्लियर हो गया? यस सर. यस सर. किसी भी मतलब कोई भी बच्चा ऐसा है, कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिससे क्लियर नहीं हो रहा हो? इंफॉर्मेशन और सोर्स क्लियर हो गया? यस सर. ओके, तो अगर आप क्लियर हो गया तो आप बता सकते हैं इंफॉर्मेशन और सोर्स को जोड़ करके क्या बनेगा? रिसोर्सेज. और सोर्स को जोड़ के क्या बनेगा? डॉक्यूमेंट्री बन जाएगा सर. Not exactly right now documentary. It will called source of information. Information and source. Combination of the both term will be known as a source of information. दोनों को जोड़ देंगे तो source of information बन जाएगा. क्लियर? क्लियर. तो अब बताएंगे अगर आप दोनों को जोड़ देंगे तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन जाएगा. तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? किसी को कुछ आइडिया सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, हमें कुछ चाहिए, the source from where we get something or concerned thing, that is called source. A point from where we get required thing, a point जहां पे हमें required thing की प्राप्ति हो रही है, उसी को क्या बोलेंगे? सोर्स. लेकिन जब इसी को हम इंफॉर्मेशन से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? The source from where we get required information, it is known as information source. Getting? Yes sir. The source from where we get required information, एक ऐसा स्रोत जहां पे हमें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन की प्राप्ति हो रही है, हम इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर रहे हैं, वो उसको किस नाम से जानेंगे? इंफॉर्मेशन सोर्सेस के नाम से जानेंगे, इंफॉर्मेशन सोर्स के नाम से जानेंगे. और ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है. दिस में भी डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, कोई ह्यूमन हो सकता है, इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई अदर मीडिया हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकता है, रेडियोज हो सकते हैं, वीडियोज हो सकते हैं, ऑडियोज हो सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग हो सकती है. एनीथिंग मे बी एनी टाइप ऑफ सोर्स. यहां तक किसी को कुछ दिक्कत? नो सर. Students, I'm asking you all, anything, any problem is here in these slides? Akash, Lokraj, Muntajim, Sita, clear? No, sir. Yes sir. Okay, come to the point, next slide, that is called types of information. अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? Information, then source, then information source. अब पढ़ेंगे types of information source. कितने प्रकार की information source? अभी मैंने information पढ़ा, फिर source पढ़ा, फिर source of information पढ़ा, अब types of information source पढ़े. तो बेसिकली टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन को हमने दो प्रकार से जानना है. दो प्रकार के होते हैं इंफॉर्मेशन सोर्सेस. पहला प्रकार हो गया डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस, दूसरा प्रकार हो गया नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस. तो हमारा जो ब्लॉग था डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस अब स्टार्ट हुआ. मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? Yes sir. यस सर. तो Yes, हम लोग अब आए हैं डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस पे. डॉक्यूमेंट्री सोर्स इट इज ए पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन सोर्स which is two types. One is documentary sources and another is non-documentary sources. And again documentary sources is two types. One is content type and another is form type. पुनः जो documentary sources दो प्रकार से पता होता है, एक content type में, एक form type में. अब content को फिर आगे बांटा गया है. कंटेंट को बांटा गया है तीन सोर्सेस में, प्राइमरी सोर्सेस में, सेकेंडरी सोर्सेस में, टर्सरी सोर्सेस में. ठीक है? मतलब ये कहने का कि डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस को दो प्रकार से बांटा गया है, दो टाइप में बांटा गया, कंटेंट टाइप, फॉर्म टाइप. एंड अगेन कंटेंट टाइप को भी तीन चीजों में बांटा गया, तीन सोर्सेस में बांटा गया, प्राइमरी सोर्सेस, सेकेंडरी सोर्सेस एंड टर्सरी सोर्सेस. अब डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस का जो पहला कंटेंट हो गया, दूसरा जो थर्ड फॉर्म टाइप. इस फॉर्म टाइप को फिर दो भागों में बांटा गया, दो चीजों में कैटेगराइज किया गया. वन इज पेपर बेस्ड मीडिया, दूसरा है अदर मीडिया. पेपर बेस्ड मीडिया एंड अदर मीडिया.
तो ये डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस के प्रकार हो गए। अब मैं जान सकता हूं डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस कितने प्रकार का दिख रहा है आपको? 2 प्रकार के सर। 2 प्रकार के सिर्फ? हेलो यस सर। हेलो, हाँ मुंतजिम जी, जी 2 ही सर। प्रकार के दिख रहे हैं? जी सर, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज आर 2 टाइप्स, कंटेंट टाइप एंड फॉर्म टाइप। अरे ऐसा ना बोलो भाई, और आगे भी दिख रहा होगा, कंटेंट टाइप भी दिख रहा होगा। सर कंटेंट टाइप में फिर 3 तरह के प्राइमरी। हाँ, तो आपको पूरा बोलना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस का कंटेंट टाइप, फॉर्मेट टाइप, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, पेपर बेस्ड मीडिया, अदर मीडिया, ये सब प्रकार के डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस है ना? क्लियर? So these are the some documentary sources which are categorized basically 2 types of media. One is content type, another is form type, and content types are again divided in 3 types of sources. One is primary sources, secondary sources, and tertiary sources. And form type is again divided in 2 types of sources: paper media, paper-based media sources, and other media sources. These are the some categorization of the documentary sources जहाँ पे हम लोग पहले थे, जहाँ से हमारा ब्लॉक स्टार्ट हुआ था। गेटिंग? हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे, तो अब हम लोग इस डॉक्यूमेंट्री सोर्स पे आ गए हैं। उस डॉक्यूमेंट्री सोर्स को हम लोग यहाँ बांट दिए। फिर आते हैं नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस, जो कि हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, बट इसके टाइप्स देख लेंगे। नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस को 4 भागों में बांटा गया है: ह्यूमंस में, ऑर्गेनाइजेशन में, मास मीडिया में, इंटरनेट पे। तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस एक एक करके बाद में करेंगे, ठीक है? तो अब बात कर लेते हैं हम लोग डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस पे आकर के। पहला है कंटेंट टाइप में, ठीक है? तो कंटेंट टाइप में देखिए मैंने यहाँ पे दिया डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस होता क्या है। सबसे पहले हम लोग डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस की बात कर रहे थे, जहां से स्टार्ट किया था। अब हम लोग सीधे यहीं पे आ गए कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस। तो ऑल रिकॉर्डेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जितनी भी रिकॉर्डेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होगी, उसको वो किसी भी चीज से संबंधित हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, उन सभी को हम लोग डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस के रूप में जानेंगे। मतलब ही कहने का, ऑल रिकॉर्डेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इति प्लीज, all recorded source of information irrespective of their content and form come under documentary sources। ये सारे के सारे जो रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन है, चाहे वो किसी भी कंटेंट में हो, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में हो, ये सारे के सारे जो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है, उनको हम डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस के रूप में जानेंगे। तो दीज में बी पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड इन प्रिंट और अदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। ये पब्लिश्ड भी हो सकते हैं और अनपब्लिश्ड भी हो सकते हैं। कौन? हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस के बारे में सर। डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस के बारे में, वेरी गुड। डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस के बारे में, ये पब्लिश्ड भी हो सकते हैं, अनपब्लिश्ड भी हो सकते हैं, प्रिंट में भी हो सकते हैं, नॉन प्रिंट में भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भी हो सकते हैं, बट ये रिकॉर्डेड होते हैं। जो चीज रिकॉर्डेड होगी, वो चाहे कोई भी कंटेंट हो, कोई भी कंटेंट का कोई पार्ट हो, किसी भी फॉर्मेट में हो, बट दैट शुड बी रिकॉर्डेड। वो किस नाम से जानी जाएगी? डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस। डॉक्यूमेंट्री रिसोर्सेज के बारे में। गेटिंग हियर? यस सर। अब यहाँ पे हम लोगों ने कुछ डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस के एग्जांपल्स दिए, जैसे बुक्स हो गई, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हो गई, पीरियोडिकल्स हो गई, रिपोर्ट्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, वीडियो रिकॉर्डिंग्स, डेटाबेस, कंप्यूटर फाइल, CD-ROM recording, diaries, letters, newspapers, all these are come under the category of the documentary sources। ठीक, बुक्स भी रिटन फॉर्मेट में होती है, मैन्यूस्क्रिप्ट भी रिटन होती है, हैंड रिटन होती है, इट इज नॉट पब्लिश्ड आल्सो। पीरियोडिकल्स मतलब मैगजीन्स, जर्नल्स हैं, ये सब पीरियोडिकल्स में आती है। रिपोर्ट्स में होती है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स होती हैं, कोई रिसर्च रिपोर्ट होती है, कि किसी कमेटी की रिपोर्ट्स होती है। आर्टिकल मतलब जो हम लोग आर्टिकल पब्लिश कराते हैं अपने जर्नल्स में, कभी कभी आपने न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स देखे होंगे। वीडियो रिकॉर्डिंग आपने देखा है, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, डिफरेंट टाइप्स के यूट्यूब पे जो चैनल अपलोड किए जाते हैं वो वीडियो रिकॉर्डिंग की कैटेगरी में आते हैं। डेटाबेसेस होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस होते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट पे बेस होते हैं। कौन सा डेटाबेस किस सब्जेक्ट से बिलोंग करता है, कौन सा डेटाबेस में कि उसकी क्या एक्सेसिबिलिटी क्या है, रिमोट एक्सेसिबिलिटी है या लोकल एक्सेसिबिलिटी है, डेटाबेसेस वो होता है। डिफरेंट टाइप्स की कंप्यूटर फाइल हो गई, CD-ROM रिकॉर्डिंग
सीडी में रिकॉर्ड करके रखते हैं। डिफरेंट टाइप्स की डायरीज हो गई, डायरीज कहीं पब्लिश थोड़ा ना होती हैं, बट फिर भी रिकॉर्डेड इन्फॉर्मेशन के रूप में जानी जाती है। ठीक है, लेटर्स हो गए, न्यूज़पेपर्स हो गए, ऑल दीज टाइप्स ऑफ सोर्सेस आर नोन एज ए डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस। यहाँ तक सभी को क्लियर हो रहा है? यस सर। यस सर। अगर आपको लग रहा है कि मैं स्पीडली बोल रहा हूँ या फास्ट बोल रहा हूँ, या मेरे पढ़ाने में कुछ आपको अटपटा सा लग रहा हो, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। नहीं सर, ठीक है सर। Okay. Okay, next come to the next point, that is documentary sources. Again it is divided in two parts. हम लोगों ने बताया था, फिर से इसको दो भागों में बांट दिया गया है, that is content type and form type. अब कंटेंट टाइप हम लोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस कंटेंट पे बेस होता है, मतलब कंटेंट ओरिएंटेड होता है, कंटेंट को लेकर के होता है ये। इसको भी तीन प्रकार से बांटा गया है, वन इज प्राइमरी, सेकेंड इज सेकेंडरी, थर्ड इज टर्सरी। तो प्राइमरी सोर्सेस इंफॉर्मेशन, अब ये प्राइमरी कंटेंट को लेकर के आपको इंडिकेट करेगी, सेकेंडरी इंफॉर्मेशन सेकेंडरी कंटेंट को लेकर के बताएगी, टर्सरी इंफॉर्मेशन टर्सरी कंटेंट को लेकर के बताएगी। मतलब ये कहने का कि डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस का जो पहला टाइप होगा, दैट विल कॉल्ड एज ए कंटेंट टाइप, वो तीन प्रकार के सोर्सेस को रिफ्लेक्ट करेगा। पहला सोर्स हो गया प्राइमरी सोर्स, दूसरा सोर्स हो गया सेकेंडरी, और तीसरा हो गया टर्सरी। ठीक है, तो these are the some grouped sources of information which will cover under the category of the content type of information. अब हम लोग एक एक डिस्कस करते हैं। अच्छा, इधर कंटेंट हो गया, उधर आप चले आएंगे राइट हैंड में फॉर्म टाइप। ये फॉर्म टाइप documentary sources will be explore its physical form. It's a physical form of the documentary source. It reflects the which form have this type of source, whether it may or in electronic form or it may be in print form, जिस भी फॉर्म में भी होगी उस फॉर्म के नाम से जाने जाएगा। जैसे पेपर बेस्ड मीडिया मतलब प्रिंट फॉर्म में आ जाएगा, अदर मीडिया में जैसे साउंड हो गई, रिकॉर्डिंग हो गई, विजुअल हो गए, इमेजेस हो गए, दीज आर द सम अदर टाइप्स ऑफ मीडिया। ये दो प्रकार के मीडिया को हम लोग फॉर्म टाइप के मीडिया में के रूप में जानेंगे। अब बात करते हैं कंटेंट, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस का जो पहला कंटेंट है उसके बारे में। कंटेंट में जो पहला जो होगा कंटेंट टाइप की प्राइमरी कंटेंट, प्राइमरी सोर्स ऑफ कंटेंट क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। प्राइमरी सोर्स मतलब प्राइमरी सोर्सेस आर दो सोर्सेस विच कंटेन ओरिजिनल मटेरियल दैट हैज बीन पब्लिश्ड, रिपोर्टेड और रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम। ऐसा मटेरियल जो पहली बार कहीं से रिकॉर्ड किया गया है, पहली बार इन्वेंट किया गया है, पहली बार आपके सामने आया है, पहली बार पब्लिश हुआ है, दैट विल कॉल्ड एज ए प्राइमरी सोर्स। सपोज बीइंग ए रिसर्च स्कॉलर, यू आर गोइंग टू कंडक्ट अ रिसर्च on your own topic and you are going to search some data, you are going to collect a data, and on the finding, after collecting the data, you are analyzing and you are using tools and techniques. On the basis of these tools and techniques, you are exploring some findings of your results. These results will be called as a primary source of information, primary source content. मतलब आपकी रिसर्च में जो फाइंडिंग निकल करके आएंगी वो फाइंडिंग प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाएगी। ठीक है, अब आप इस आर्टिकल को, इस रिसर्च वर्क को कहाँ पब्लिश कराते हो, जो भी पब्लिश करेगा वही प्राइमरी कंटेंट, प्राइमरी सोर्स कहलाएगा। जो कि फर्स्ट टाइम आपके पहले, आज से पहले, आपके पहले अभी तक ये काम किसी ने नहीं किया, पहली बार जो ओरिजिन होगी दैट विल कॉल्ड प्राइमरी सोर्स। इनके कुछ एग्जांपल्स हमने दे रखे हैं, दैट इज प्राइमरी पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर्स, टेक्निकल रिपोर्ट्स, dissertation, conference papers, patents, standards, trade and products, bulletins, etc. These are the some category of the primary source. आपके यूजीसी नेट के एग्जामिनेशंस में डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। So many times these types are questions are asked that technical reports are come under which type of category. Options will be given: A option primary sources, B option secondary sources, C option tertiary sources, and D option will be none of the above. What you will choose? Tell me. प्राइमरी सोर्सेस सर। Exactly. So these
these type of question may be arise in your some forthcoming examination. That's why I'm asking कि आपके दिमाग में कंटेंट अभी तक क्लियर हो, क्यों पीरियडिकल, क्यों प्राइमरी हम बोल रहे हैं। अब हम न्यूज़पेपर को हम प्राइमरी सोर्स क्यों बोलते हैं, कोई बता सकता है? सर क्योंकि ये पहली बार कोई खबर छपी है, डॉक्यूमेंट्री इससे पहली बार बनी है, इसलिए ऑब्वियसली जो भी न्यूज़पेपर रात में पब्लिश होता है वो पूरे दिन भर की घटनाओं को इकट्ठा करके फिर एक जगह कंपाइल करके तभी तो उसको प्रिंट किया जाता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूज़पेपर्स आर द प्राइमरी सोर्सेज। अब आप देख लीजिए, जैसे पेटेंट से क्यों हम बोलते हैं कि प्राइमरी सोर्स है, क्योंकि उससे पहले उसका किसी ने कोई इजाद नहीं किया, उससे पहले उस पर किसी ने काम नहीं किया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्राइमरी सोर्सेज, है ना। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकेंडरी सोर्सेज। सेकेंडरी सोर्सेज वो होते हैं कि जो प्राइमरी सोर्सेज पे बेस्ड होता है। सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर देयर एग्जिस्टेंस on the basis of the news published in the newspaper. We are informing to our colleague. हम अपने कलीग को इन्फॉर्म कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो न्यूज़पेपर में पब्लिश हो चुका है। तो जो चीज पहले से पब्लिश हो गई होती है उसको हम उसी पे बेस होकर के जो इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं वो सेकेंडरी सोर्स कहलाता है। सेकेंडरी सोर्सेज के भी कुछ उदाहरण जैसे इंडेक्सेस हो गए। अब आप लोगों में से कई लोगों ने बुक्स देखी होगी, बुक्स में इंडेक्स होता है, इंडेक्सिंग होती है बुक्स में। यस सर। इंडेक्सिंग क्यों दिया होता है? क्यों? इंडेक्सिंग भी अल्फाबेटिकल अरेंज होती कि भाई ए से लेकर के बी तक, जो है ए से लेकर के सी तक इस पेपर में रहेंगे, देन अल्फाबेटिकल अरेंज होता है। फिर सपोज कोई भी पेपर किसी भी टॉपिक पे ले लो, वो टॉपिक का जो कंटेंट होता है उसको पेपर में बुक्स में इंडेक्सिंग कर देते हैं। उस इंडेक्सिंग में क्या होता है, कंटेंट को पेज वाइज बांट देते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर कंटेंट में जाना है तो इस पेज में जाएंगे, तो इंडेक्सिंग। और वो इंडेक्सिंग इसलिए सेकेंडरी आ गई क्योंकि पहले से वो कंटेंट ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, वो कंटेंट ऑलरेडी हमारे बुक में उस कंसर्न पेज पे अवेलेबल है। डिक्शनरी हो गया, इंसाइक्लोपीडिया हो गया, और हैंडबुक हो गया, ईयर बुक हो गया, ये सब में मतलब इनको क्यों, इनके सारे कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ऑलरेडी समवेयर एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्लियर? Yes, sir. Then come to the tertiary sources. Tertiary sources are based on primary and secondary sources. किसी को कुछ आइडिया है tertiary sources क्या होता है? हेलो सर ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों पर बेस होता है। एग्जैक्टली सर लाइक रिव्यू आर्टिकल्स। हाँ राइट, लाइक documentary film, sir. Right. These are the tertiary sources which are totally based on the primary and secondary as well. Primary and secondary sources create tertiary sources. Just like a directory, हम लोग पहले जमाने में बीएसएनएल का कनेक्शन होता था। बीएसएनएल का कनेक्शन हम लोग लैंडलाइन लेते थे, वो बीएसएनएल वाले हम लोगों को क्या देते थे, डायरेक्टरी। मतलब हमारे एरिया में जितने लोगों ने बीएसएनएल कनेक्शन लिया है उनकी एक डायरेक्टरी हमको मिलती थी। डायरेक्टरी किस पे है? प्राइमरी और सेकेंडरी पे। डायरेक्टरी का मतलब ये होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी कहीं ना कहीं पहले से 2 बार 3 बार यूज हो चुकी है, इसलिए उसको डायरेक्टरी बोलते हैं। बिब्लियोग्राफी या बिब्लियोग्राफीज, एक सिंगल बिब्लियोग्राफी हो गया, फिर उन बिब्लियोग्राफी की भी एक बिब्लियोग्राफीज होगी। मतलब कई सारी बिब्लियोग्राफीज को कंपाइल करके एक सिंगल बिब्लियोग्राफी बनाए, जस्ट लाइक ए किंग्स ऑफ किंग, है ना। तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, इट इज कॉल्ड टर्सरी सोर्सेज। क्लियर? क्लियर हो रहा है लोगों? यस सर, यस Yes, sir. Okay, then come to the next point. Next type of documentary sources, that is called paper-based media. Paper-based media mean to say a media which will be based on the physical form of the paper and published and unpublished. It may be published or it may be non-published. Published sources are those sources which are printed in large number of the copies by publishers. क्योंकि ये पब्लिशर्स के द्वारा ही पब्लिश किए जाते हैं। जैसे अब पब्लिशर क्यों पब्लिश करता है? क्योंकि पब्लिशर उसकी अथॉरिटी होती है। अब जैसे हम थीसिस डिसर्टेशन की बात करेंगे, थीसिस डिसर्टेशन में पब्लिशर का कोई रोल नहीं होता है, बट फिर भी ये पेपर बेस्ड होती है। तो हम लोग कोई रिसर्च वर्क करेंगे तो वो थीसिस बेस्ड होगी।
डिजर्टेशन करते हैं हम लोग एमएलआईएस में हैं, और टेक्निकल रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट लिखते हैं, ये सब पेपर बेस्ड होती है। जो भी हमारा सोर्स पेपर पे बेस हो करके क्रिएट किया जाएगा, दैट विल कवर अंडर द कैटेगरी ऑफ द पेपर बेस्ड मीडिया। देन other media such as this type of media may be considered as a audio, video, electronic, optical or microform. So we can categorize some following types such as sound or audio recording, visual image, electronic media, optical media. These are all things which will cover under the other media. Mean to say, if you are listening some voice from somewhere, that will cover under the category of other media. If you are communicating your information to another person, that will call other media. And other media is not in written form. Other media is not in written form. It have some other format. It have some other extensions as well. Okay. Then these are the some criteria. अब हम लोगों ने ऊपर जितने भी प्रकार के मीडियाज का, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस का स्टडी किया है, उसको हम लोग, ये दिख रहा है आपको, स्लाइड दिख रही है मेरी? नहीं। ये आई डोंट नो कि व्हाई इट इज नॉट शोइंग। हाँ सर, दिख रही है। ओके, तो हम लोगों ने जितने भी प्रकार का जो सोर्सेस को देखा है, डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस, फिर डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस के टाइप, फिर जो कंटेंट टाइप और फॉर्म टाइप, फिर कंटेंट टाइप को फिर तीन पार्ट में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, देन फॉर्म टाइप में फिर 2 टाइप में, पेपर बेस्ड मीडिया और अदर मीडिया। उनके बाद फिर नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस में, फिर इन जितने सोर्सेस को, ये कौन कौन से सोर्स, इनको कैसे एवोल्यूट करेंगे, उनके लिए क्राइटेरिया क्या है, वो क्राइटेरिया को जानने के लिए हम लोग कुछ एक एवोल्यूशन करेंगे कि व्हाट आर द क्राइटेरिया टू एवोल्यूट अ पर्टिकुलर सोर्सेस, वेदर दिस सोर्स विल बी यूजफुल फॉर आवर यूजर्स और नॉट, दिस विल बी ऑथेंटिक और नॉट। So there are some criteria for evolution. With the help of the criteria, we can easily evaluate that particular source will be required for our library or for our user. For the evolution of the reference book, अगर हम अपनी लाइब्रेरी में किसी रेफरेंस बुक को मंगाते हैं, उसको चूज करते हैं, तो अथॉरिटीज हैव प्रिपेयर्ड अ चेकलिस्ट। आपके पास, आप कोई सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो आप अपने पास चेकलिस्ट बना लेते हैं कि पहले ये सामान लेना, ये सामान लेना, ये सामान लेना, और उस सामान में कुछ पर्टिकुलर चीज लाते हैं। आप सपोज एसी लेने जाते हैं, घर का कोई सामान लेने जाते हैं, तो उसमें आप कुछ की फीचर्स बना लेते हैं कि भाई अगर हम टीवी लेने जा रहे हैं तो ये फीचर होना चाहिए, वेब ओएस होना चाहिए, और एंड्रॉयड होना चाहिए, वाईफाई होना चाहिए, और क्या बोलते हैं कि ब्लूटूथ इनेबल्ड होना चाहिए, कुछ फीचर्स अपने मन में जान लेते हैं। सेम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज को एवोल्यूट करने के लिए ऑलरेडी चेकलिस्ट है। उस चेकलिस्ट में क्या क्या होता है, पास्ट रिकॉर्ड ऑफ द पब्लिशर का पास्ट रिकॉर्ड चेक करते हैं, उसकी अथॉरिटी चेक करते हैं, उसका स्कोप चेक करते हैं, ट्रीटमेंट देखते हैं उसका कैसे करेंगे, उसका अरेंजमेंट क्या है, इंडेक्सिंग कैसे होती है, उसके स्पेशल फीचर्स क्या है, उनका बुक रिव्यूज क्या होता है, लिमिटेशंस क्या होती है, फॉर्मेट एंड कंक्लूजन। ये जो चेकलिस्ट है ना, ऊपर जो ये जो चेकलिस्ट बनाई गई, ये सारी चेकलिस्ट आपके इन सोर्सेस पे अलग अलग डिपेंड करती है। ये जो आपने सोर्सेस देखे, स्लाइड दिख रही है आपको सर? ये सारी जो सोर्सेस हैं, ये सारे सोर्सेस को ये चेकलिस्ट के माध्यम से इनको एवोल्यूट किया जाता है। तो आज आपको इतना कुछ मतलब समझ में आया कि कैसे चेक करते हैं, कैसे क्या क्या सोर्सेस होते हैं। क्लियर? क्लियर सर। यस सर। एनी हैव एनी डाउट? नो सर। नो सर। तो आज के सेशन में हम लोगों ने यूनिट पेपर 2 इंफॉर्मेशन सोर्सेस एंड सर्विसेज का ब्लॉक 1 डॉक्यूमेंट्री सोर्सेस में यूनिट 1 कैटेगराइजेशन ऑफ द सोर्सेस, प्राइमरी सोर्सेस, सेकेंडरी एंड टर्सरी सोर्सेस एंड क्राइटेरिया ऑफ एवोल्यूशन, ये कवर किया है। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जी सर। यस सर। अगर आपके मन में कुछ और भी डाउट हो, कुछ मतलब अनक्लियरिटीज है, तो आप मुझे बता सकते हैं।
Anyone have any doubt? नो सर सर। जो आपकी प्राइमरी वाली स्लाइड थी सर, एक बार उस पे जाएंगे, कुछ पूछना था सर वहां से। Just a minute, just a minute. जी सर यहाँ पे एक यहाँ पे एग्जांपल्स में है ना डिसर्टेशंस, सर ये क्या होता है, और साथ में dissertation. स्टैंडर्ड्स क्या होता है सर? Okay, dissertation, it is a type of the project which will be conducted by you in your MLIS examination, in MLIS classes. Whenever you will complete your next class, that will called as MLIS, and in MLIS you have to complete a dissertation. It's a type of the project. एक प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा, उस प्रोजेक्ट को सबमिट करेंगे, उसको डिजर्टेशन के रूप में सबमिट करेंगे, जमा करेंगे. Type of the, you can say, it's a brief view of the, brief form of the thesis. एक रिसर्च वर्क आपको आपसे कंडक्ट कराया जाएगा, उस रिसर्च वर्क की जो सबमिशन होगा वो डिजर्टेशन के रूप में सबमिट करेंगे. मास्टर क्लासेस के लेवल पे ये सबमिट किया जाता है. और जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, दीज आर द सम स्टैंडर्ड्स, ऑन द बेसिस ऑफ दैट standards we create, we find something. Suppose if you are going to take some fiber chairs, if you are going to purchase some fiber chair can say, then that standard is ISI. It's ISI. All of Yes, you sir. know, I might know ISI. It is a type of the standards. When we are talking about that retrospective conversion, that is called ISO 2709. These are the some standards. On the basis of that parameters, if that product is stand, that product will be considered a good product. मतलब किसी स्टैंडर्ड को अगर बिलोंग करता है वो, तो उसको आप अच्छी कैटेगरी में ले जाएंगे. समटाइम्स यू कैन आइडेंटिफाई स्टैंडर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द लोगो. अगर आपने किसी प्रोडक्ट पे ISI का लोगो देख लिया, अगर आपने सपोज आप शूज लेने जाते हैं, शूज में अगर नॉर्मल प्रोडक्ट है तो कोई बात नहीं, अगर उसमें आपने एडिडास का लोगो देख लिया तो आपके दिमाग में वो शूज की क्वालिटी, वो शूज की जो वैल्यू बढ़ जाती है. इट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड्स. Okay, sir, like BIS and hallmarking in gold and hallmark logo and sometimes the numerical and alphabetical combination of the standards can say. Okay, sir, thank you. Any other else, please? किसी को और कुछ डाउट हो? So any doubt, you can leave me a message. I am on WhatsApp also. I have given my number to you all. It's my first slide. On this slide, I have given my contact details and mail ID, and you can leave a message without any hesitation regarding this contact. So should we sum up? Yes, sir. Okay, thank you very much, dear students, for listen carefully, for patiently listen. I'm very thankful to you all. Next, Thank you, sir. In another session. Okay. Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, Ashwani sir. Oh, thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. So students, आज आप लोगों का सेकेंड हाफ में क्लास है. कितने बजे से मैम? 6 बजे से मैम. ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन करेंगे, घबराएंगे नहीं. और अच्छा लगा, असल में बहुत ज्यादा नेटवर्क इश्यू हो जा रहा है, तो इसलिए घबराना नहीं. ग्रुप में सभी लोग हैं, मैं मैसेज डाल भी दे रही हूँ. तो सेकेंड हाफ में आप लोग टाइम से, कितना बजे है क्लास? 3 बजे से है क्या मैम? 3 बजे से. ठीक है, ठीक है. आप लोग भी ग्रुप में डाल सकते हैं, आप लोग भी शाम को डाल दीजिएगा कोई एक व्यक्ति, और लिंक भी डाल दीजिएगा. मैं शाम को रहूंगी. हाँ, चलिए. ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स. सो ऑल कैन लीव नाउ. मैम and we will all join at 3. So students, सेशन अभी आप लीव कर सकते हैं और हम लोग जुड़ेंगे शाम को 3 बजे. ओके. ओके मैम.